Hi guys, I'm back with another lecture of human rights and values, and in this lecture we're going to start with the unit 4. In earlier lecture we have covered the last topic of unit 3, and before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management, and the subject that we are taking up over here is human rights and values. So these are the topics that we're going to cover in the subsequent lectures of Unit 4. So we'll talk about the concept of human values, the objectives of value education, and how the value-oriented education evolved. Then the concept of human values, the types of human values, and components of value education, and how the character is being formed towards positive personality, which includes truthfulness, sacrifice, sincerity, self control, altruism, tolerance, self scientific vision. And we'll also talk about value education towards national and global development, as in how value education helps in the global and national development, and national integration and international understandings. So, in this lecture, I'll just introduce you with the concept of human values and what are the objectives of value education. So let's get started. So yeah, um, what do you understand by the term value education? It's a mixture of two words, value and education. Value is something which is being learned, which is being instilled into us by our parents, by our teachers, as in which helps us to know what morality is. Okay, it's basically teaching towards morality. So when we know what's right, what's wrong, and you know what's morally correct, what's morally incorrect, that's what values try to tell us. Okay, and education is when we are trying to impart knowledge. So value education simply means when we are trying to impart knowledge relating to subjects which will help us to understand what morally correct is and what is morally incorrect. Okay, which will help us in future to know what is right and what is wrong. So whenever a crime is being committed, okay, we all know that it's a wrong thing, it's a bad thing. How do we know this? Because our values teaches us that okay, this is wrong and this is right. Okay, if a person is crossing a road, if an old person is crossing a road, and there's a guy who is trying to help him to cross the road, then it's a good thing. Now how do we know that it's a good thing? Because this is our values. It's in our values that you know we should help others, we should always lend a helping hand to elders, to old people. So these are our values. And let's say if a person was just standing at some distance and he was just watching that old person crossing the road. So we can say that he's doing something wrong or he's not doing something right, because he should have been helping that old person in crossing the road. So if he's not doing it, then it's his values that you know he doesn't understand that what's right and what's wrong. So value is something which is very much personal, and it differs from person to person. So something may be right for me but may be wrong for someone else. So it depends upon our values. Okay, so the very purpose and main function of education is the development of all people. Okay, education is something which helps us to grow in life, to develop. Okay, but the overall objective of any education is the all round development, a well balanced personality of the students, or we can say holistic development. Okay, full holistic development should be there, which means that the person should be developed mentally also, he should be developed physically also, all the cognitive skills should be developed, and his EQ, IQ level should be very high. So when we are talking about all the spheres of development, that should be the actual objective of any education. But recently it have been seen that the education that the schools or the colleges are trying to impart to their students have been restricted to academic knowledge only. अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि ज्यादा हम स्टूडेंट्स को और तरह की नॉलेज या वैल्यू एजुकेशन पे कोई उनको पढ़ाया नहीं जाता है,
उनको ये नहीं सिखाया जाता है दैट ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, या यू शुड बी हेल्पिंग योर एल्डर्स। आजकल लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं रही है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज उनके अंदर जो एक कमर्शलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है, मटीरियलिस्टिक हो गए हैं लोग, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज दे आर लूजिंग देयर वैल्यूज। वैल्यूज को खोते जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर लूजिंग देयर पर्सनल टच। वो हम लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाते, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई people are also not getting the full holistic development these days. उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनका जो ब्रेन है वो एक लेवल पे आके स्टॉप हो जाता है, ग्रो करना स्टॉप कर देता है। वाई? बिकॉज उनको सिर्फ एक ही चीज फीड कराई जाती है, एकेडमिक नॉलेज, दैट्स इट। बुक्स में क्या है, सिलेबस में क्या है, दैट इज इट। उसके अलावा कोई एक्सटर्नल या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दी जाती है विच इज सोशली और कल्चरली रिच। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी जाती है। ओके, सो पर्पस एजुकेशन का हमेशा यही होना चाहिए दैट द पर्सन शुड बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल, ही शुड बिकम कल्चरली रिच, he should become intellectual, and also he should become more democratic and cohesive. लोगों के साथ इंटरैक्ट करे, लोगों के साथ जुड़कर आगे काम करे, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, कल्चरली रिच हो, एंड डेमोक्रेटिक व्यूज वाला हो। ठीक है, सो जो हमारी पर्सनालिटी के जो दूसरे ट्रेट्स हैं, विच इंक्लूड्स द फिजिकल ट्रेट्स और द इमोशनल ट्रेट्स, सोशल ट्रेट्स, स्पिरिचुअल ट्रेट्स, उनको ज्यादा टैप नहीं किया जा रहा है आज के टाइम पे, and which are very much important to actually develop the attitude, the habit and the skills of the people. अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है इसका एटीट्यूड चेंज हो, उसकी हैबिट्स चेंज हो, उसकी वैल्यूज इंप्रूव हो या उसकी स्किल्स इंप्रूव हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैप ऑल द स्पेयर्स ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर्स हैं उनको राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में टैप करना बहुत जरूरी है, सो एज टू इंश्योर कि आपका फुल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। क्योंकि मे बी इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हर पर्सन का दिमाग जो है वो एकेडमिक्स में नहीं चल रहा है। मे बी अ पर्सन इज गुड इन फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यू शुड try to channelize all your energy into that particular direction. आप अपनी एनर्जी को उसी एक डायरेक्शन में जब चैनलाइज करेंगे तो यू विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड यू विल बिकम मोर फ्रूटफुल। जो रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर निकल के आएगा, rather than forcing that particular person into academics जो रिजल्ट भी नहीं देगा लाके आपको। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हमने ये वैल्यू एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर आए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने देखा है कि अभी तक हमने तीनों यूनिट्स में क्या पढ़ा, दैट व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, हाउ दे आर बीइंग वायलेटेड, एंड स्टेट्स उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है, क्या हमारे रिड्रेसल फॉरम्स हैं, क्या उसका सिस्टम है। बट the basic premise behind all the things is the human psychology, कि ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसी है, ह्यूमन के दिमाग में इस तरह की चीजें ट्रिगर करती हैं जिनकी वजह से वो इस तरह के क्राइम्स कमिट करते हैं, इस तरह की वायलेशंस होती हैं। तो उसको अगर हमें एक्चुअली में कम करना है, देन दिस वैल्यू एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि वैल्यू एजुकेशन जो है वो आपको मोरालिटी के बारे में समझाएगी, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करेगी, आपकी सोचने के दायरे को बढ़ाएगी, ताकि आप हर चीज को सही तरीके से समझ सको। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऑल्दो ये एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है वैल्यू एजुकेशन की, बट स्टिल इफ आई वांट टू डिफाइन, तो ये कुछ हमारे टीचर्स ने, ये रिसर्चर्स ने ये एक वैल्यू एजुकेशन की एक डेफिनेशन डिफाइन करी है। लेट्स रीड अबाउट इट। वैल्यू एजुकेशन इज अ मेनी साइडेड एंडेवर and is an activity during which young people are assisted by adults or older people in schools, family homes, clubs, and religious and other organizations to make explicit those underlying their attitudes, to assess the effectiveness of these values for their own good and others' long-term well-being, and to reflect on and acquire other values which are more effective for long-term well-being. सो व्हाट इट मीन्स इज कि एक मेनी साइडेड एंडेवर है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही चीज को टैप करेगा। वैल्यू एजुकेशन अगर अगर आप देते हो स्टूडेंट्स को, तो वो एक काफी सारी साइड्स को टैप करेगा, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करेगा। एंड ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें यंग पीपल को असिस्ट किया जाता है अडल्ट्स के थ्रू,
या ओल्डर पीपल के थ्रू, आपके स्कूल्स में, आपकी फैमिली होम्स में, क्लब्स में, रिलीजियस में, अदर ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि वैल्यू एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही मिलेगी, वो आपको घर पे भी मिल सकती है, आपके पेरेंट्स से, आपके सिबलिंग से, किसी से भी मिल सकती है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग कर रहे हैं होम पे, कोई क्लब अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, कोई रिलीजियस या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन गेट इट फ्रॉम एवरीवेयर। सोसाइटी के हर पार्ट में, हर कोने से आपको वैल्यू एजुकेशन जो है वो मिल सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वो आपके उन एटीट्यूड्स को या उस चीज को एक्सप्लिसिटली अवेलेबल कराता है जो अभी तक बहुत ही ज्यादा अंडरमाइन की जा रही थी, बहुत ज्यादा दबी हुई थी। आपके उन फीचर्स को वो बाहर निकाल कर आएगा, उस एटीट्यूड को बाहर निकाल के लाएगा, जो कि आपकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करेगा, आपकी लॉन्ग टर्म वेलबींग को इम्प्रूव करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वैल्यू एजुकेशन इज ऑल अबाउट. So value education is concerned to make morality a living concern for students. इसमें क्या होता है कि आप मोरालिटी वाले कॉन्सेप्ट को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना देते हो, एक लिविंग कॉन्सेप्ट बना देते हो कि ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप जियोगे, जिंदा रहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। इट्स अ लिविंग कॉन्सेप्ट फॉर अस दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। ऑल्दो फूड के बिना फिर भी आप थोड़े बहुत दिन सस्टेन कर जाओगे, और पानी के बिना आप ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते हो। सो वैल्यू एजुकेशन को हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, टू मेक मोरालिटी अ लिविंग कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स. Hence, what is needed is value education. Despite many educators and educationists describing regarding value education, it cannot be defined, it cannot be denied that continuing research will continue in making the description of value education more adequate. अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है. इट इज नॉट कॉन्क्रीट, इट इज नॉट इन, इट इज अ वेरी, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म विच इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इसमें कॉन्स्टेंट मॉडिफिकेशंस आती हैं. रिसर्चर्स अपनी रिसर्च के थ्रू नए नए रिकमेंडेशन, नए नए कंक्लूजन्स देते हैं. तो ये एक ongoing process है जो कि हमेशा चलने वाला है. Now, what are the objectives of value education? So, traditionally, the objectives of value education were based on religion and philosophy. पहले के टाइम पे हमें ये सिखाया जाता था कि हर चीज धर्म पेक्ष है. If I talk about the Gurukuls, when people used to go to the Gurukuls, तो उनको किस टाइप की नॉलेज दी जाती थी? उनको ये सब नहीं सिखाया जाता था that 1+1 is 2, 3+2 is 5, या मल्टीप्लीकेशन, इस तरह की नॉलेज डेफिनेटली थोड़ी बहुत रहती थी. बट इसके अलावा उनको वैल्यू एजुकेशन ज्यादा दी जाती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती थी, हाउ दे कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर नॉलेज इन देयर एक्चुअल लाइफ. इस तरह की नॉलेज उनको ज्यादा दी जाती थी. अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि आपकी नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज से शिफ्ट होकर थ्योरेटिकल नॉलेज पे आ गई है, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है. सो ट्रेडिशनली हम चीज़ों को रिलीजियस या फिलोसफिकली रिलेट करते थे, और हमारी वैल्यू एजुकेशन उसी पर बेस्ड होती थी. सो देयर वाज नो सेक्युलर वैल्यू एजुकेशन. अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर धर्म की अगर हम बात करें, रिलीजन की बात करें, तो वो उसी से रिलेटेड अपनी वैल्यू एजुकेशन को रखते थे, दैट हमारे धर्म में ये वैल्यूज होती हैं, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग ये मॉरली करेक्ट है, ये मॉरली इनकरेक्ट है. तो जो आपकी वैल्यू एजुकेशन थी वो काफी बायस्ड थी, वो सेक्युलर नहीं थी. बट इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड ये एक अलग टाइप की शेप ले ली है वैल्यू एजुकेशन ने. इट इज मोर सेक्युलर, अनबायस्ड है, एंड फुल होलिस्टिक डेवलपमेंट व्यू रखती है. So let's talk about the objectives now. So first is the full development of child's personality, be it physical, mental, emotional and spiritual. तो आपकी जो ये 4 phases होते हैं पर्सनालिटी के, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इन सब का इक्वल डेवलपमेंट या फुल डेवलपमेंट होना ही वैल्यू एजुकेशन का फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है. फिजिकल डेवलपमेंट एज इन कि आपको खेलना इम्पोर्टेंट है, आपको प्रॉपर स्लीप इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर एक जो एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि कैसे आपके सारे जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो डेवलप हो, वो इम्प्रूव हो. देन इमोशनल एज इन कि आप लोगों के लिए कैसे सेंसिटिव हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, इट मीन्स कि आप में वैल्यू एजुकेशन की कमी है, आप लोगों के लिए मॉरली कंसर्न नहीं है, आप उनकी सेंसिटिविटी को देखकर
आपको अगर कुछ फील नहीं हो रहा है, देन देयर इज अ लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मेंटल एज इन की आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो डेफिनेटली 1+1 2 एंड 3+2 5 ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एज इन यहाँ पे हमारा स्पिरिचुअलिटी से मतलब रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एज इन व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, जब आप खुद को जानना स्टार्ट कर देते हो बाय मेडिटेशन, बाय योगा एंड बाय अदर एक्टिविटीज। तो जब आप खुद को सेल्फ एंगेज करते हो एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाई यू हैव एक्चुअली टेकन बर्थ एंड आपका पर्पस क्या है लाइफ में, अगर वो आप जानना लग जाओगे तो वो आपका वैल्यू एजुकेशन का पर्पस सर्व हो जाएगा। The next objective is inculcation of good manners and of responsible and cooperative citizenship. तो यहाँ पे हम उनको गुड मैनर्स सिखाते हैं कि आपके क्या क्या अच्छे ट्रेट्स होने चाहिए, एक कैसे आप रिस्पॉन्सिबल और कोऑपरेटिव सिटीजन बन सकते हैं। इस तरह की चीजें जब आपके अंदर इनकलकेट करी जाती हैं, देन दैट इज वैल्यू एजुकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट ओके यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे एंड you should wake up early in the morning, you should exercise daily, and you should sleep early, early to bed, early to rise. So all these kinds of things, these are good habits hain, ye jo good manners hain. Whenever you meet someone, you have to greet them and always touch the feet of your elders. तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये मैनर्स जो हैं, ये मैनरिज्म वाली जो चीजें हैं, ये भी एक वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। Then developing respect for the dignity of individual and society. It is very important. This objective is very much important, that you must have compassion for other people in the society. उनके लिए सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए रिस्पेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पर्सन हैव द राइट टू लिव विद फुल डिग्निटी। एंड अगर आप दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझोगे या अपने इक्वल नहीं समझोगे या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, देन दैट इज अगेंस्ट वैल्यू एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज इनकलकेशन ऑफ अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सी यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन में हम हर टाइप की चीजों को कवर करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट फॉर दी सोसाइटी ऑल्सो। आप कैसे सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उस चीज को भी हम वैल्यू एजुकेशन में अब इंक्लूड करते हैं। तो पेट्रियोटिज्म की जो एक फीलिंग होती है, एक स्पिरिट होती है, वो जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप कितने देश प्रेम करते हैं, आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपकी स्पिरिट है। दैट इज ऑल्सो वैल्यू एजुकेशन। ओके, developing a democratic way of thinking and living. See, this is very important. If you have a very biased way of thinking, अगर आप हर चीज को एक प्री डिटर्मिन नोशन के साथ अगर आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आप हर चीज को बिल्कुल निष्पक्ष होकर, एक बिल्कुल अनबायस्ड होकर आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। एंड आपका रहने सहने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक व्यू होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को बायस्ड होके ना देखो। कि अगर आपका एक फॉर एग्जाम्पल एक प्री कंसीव नोशन है आपका, दैट किसी भी प्री कंसीव नोशन का मतलब है जब आप किसी चीज को जाने पहचाने ही, बिना जाने पहचाने ही आप उस चीज के बारे में कुछ अपने थॉट्स बना लेते हैं, कुछ व्यूज बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज, इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, कि आपको कोई पर्सन जो है वो पसंद नहीं है फॉर नो रीजन, आप उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, बट आपको बस वो पर्सन जो है वो पसंद नहीं है, तो दिस इज अ प्री कंसीव नोशन। अब उसकी वजह से अगर वो पर्सन आपके लिए कोई काम करता है, अच्छा काम भी करेगा, तो व्हाट विल हैपन, यू विल से और यू विल फील दैट यू नो दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग फॉर मी। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ प्री कंसीव नोशन। आपके डेमोक्रेटिक वे नहीं, व्यूज नहीं थे, आपका डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग नहीं था, यू वर बायस्ड। तो उस केस में आप जो डिसीजन लेंगे वो गलत हो सकते हैं बहुत बार। ठीक है, सो यू शुड बी डेमोक्रेटिक and unbiased. Then developing tolerance towards and understanding of different religion faith. Again ये आपका ऊपर वाले पॉइंट से लिंक्ड है। अगर आप डेमोक्रेटिक व्यू रखते हैं, if you are totally unbiased, then you must be then you won't be having any problem with the people of different belief system and different faith and different religion. आप सब रिलीजन को इक्वली वैल्यू देंगे, सबको इक्वली इंपॉर्टेंट समझेंगे एंड टॉलरेंस पावर जो है वो आपकी बढ़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके रिलीजन में ये कहा जाता है दैट वी शुड वर्शिप काउ, तो आप इस चीज की वैल्यू करते हैं।
बट अगर किसी और के रिलीजन में अगर ये कहा जाता है दैट वी शुड वर्शिप सम अदर एनिमल, तो आपको उसके लिए भी उतनी ही कंपैशन, उतनी ही इंटीग्रिटी और उतनी ही रिस्पेक्ट जो है वो रखनी पड़ेगी. So you should be having a democratic view for other religion also. Developing a sense of brotherhood at social, national and international level. ये एक जो भाईचारे वाली फीलिंग है ये आपके मन में होनी चाहिए, आपके सोशल गैदरिंग्स में, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी. आपकी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो लोग आ रहे हैं, यू शुड हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड फॉर देम. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए यू शुड हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री से अगर कोई लोग आते हैं आपकी कंट्री में, तो यू शुड हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड फॉर देम एज वेल. देन हेल्पिंग पीपल टू हैव फेथ इन देमसेल्व्स, तो ये आपका थोड़ा साइकोलॉजिकल हो गया है कि लोगों को अपने अंदर एक फेथ रखने की हेल्प करनी चाहिए आपको. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू शुड हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन टू बिल्ड और टू रीगेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो ये भी एक वैल्यू एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है. Enabling people to make decision on the basis of sound moral principles. Again, if you are making decisions on the basis of some other preconceived notions या कुछ ऐसे आपके judgments, आप किसी person को judge करने के बाद आप उस पे अगर कोई decision ले रहे हैं, then that's a wrong thing. You should take decision on sound moral principles. कोई भी decision आप ले रहे हैं तो पहली चीज वो morally correct होना चाहिए एंड वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होना चाहिए. ठीक है. देन इवॉल्विंग द वैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ वैल्यू एजुकेशन. अब ये जो एक प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन के, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये रिजिड नहीं है कि सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैल्यू एजुकेशन के. ये एक प्रोसेस है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है. तो इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को भी इवॉल्व करते रहना वैल्यू एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दें ऑब्जेक्टिव में कि लोगों को कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर उनको कोई कह रहा है कि इस तरह के ग्रुप्स फॉर्मेशन करना है या कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए आपको हेल्प करेगी, जस्ट बिकॉज वो आपको मिसगाइड कर रहा है आपके रिलीजन का नाम लेकर, तो इस तरह की चीज़ों पे भी अगर आप क्लॉज लगाते हैं, इसको भी अगर आप वैल्यू एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्टिव में, किस तरह की चीज़ों पे आप बैन लगाएं या आप इस तरह की चीज़ों को रोक सकें, तो वो भी एक्सेप्टेबल है. तो ये टाइम एंड अगेन इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है वो एड ऑन होते जाते हैं. एज आई टोल्ड यू कि पहले के टाइम पे वैल्यू एजुकेशन वाज मोर रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअल चीज़ों से, साइकोलॉजिकल चीज़ों से वो ज़्यादा रिलेटेड थी. बट रिसेंटली उसमें चेंजेस आए, तो आगे भी इसमें और चेंजेस आ सकते हैं. सो इसको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना चाहिए. देन सजेस्टिंग मेजर्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन. अगेन अगर आप इस चीज को वैल्यू एजुकेशन को प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इनको पढ़ ले रहे हो, इसको समझ ले रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, इन योर एक्चुअल लाइफ, देन इट्स ऑफ नो यूज. एंड आप कैसे लोगों के इंटरेस्ट्स को रिलेट कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो वैल्यू एजुकेशन. एंड टू क्लैरिफाई द एक्चुअल मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन. अभी वो काफी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट, कि वो उसका मतलब एग्जैक्टली में क्या है, बिकॉज कॉन्सेप्ट काफी वाइड है, कवरेज काफी ज्यादा है. तो इट इज slightly difficult for normal people, for layman people to understand it. ठीक है. तो हम इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट वैल्यू एजुकेशन, कि क्या होती है वैल्यू एजुकेशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन. We'll talk about some other topics in the next lecture. So this is it about today's lecture. Hope you have understood it well, and thank you.